Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. You know that we are doing lesson number 8, how do organisms reproduce? And till now we have studied about the asexual reproduction and the different methods or different modes by which asexual reproduction occurs. Today onwards we are starting with sexual reproduction. Sexual reproduction हम start कर रहे हैं आज and we will going to study the sexual reproduction in flowering plants as well as the sexual reproduction in human beings. Okay, so today in this video I am giving you just the general introduction about sexual reproduction, about the variations, about why sexual reproduction takes place, means what is the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction, and the concept of DNA copying. So let's start today's class. Okay, so first of all, what is sexual reproduction? Sexual reproduction is the reproduction in which two individuals are required, two parents are required for the production of the offsprings, or we can say for the production of new generation, means one male and one female parent. Whereas when we have studied asexual reproduction, there we have studied that the offsprings are produced by the single parent only. Only one individual is required for the production of a new generation, for production of offsprings, or we can say for production of children. But here two parents are required, one is male and one is female. Now what happens in sexual reproduction? Sexual reproduction में जैसा कि मैंने कहा two parents की ज़रूरत होती है, male और female. They produce the gametes. Gametes क्या होते हैं? Sex cells होते हैं. अब आपको पता है बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. सेल्स में सेक्स सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो सेक्स सेल्स होते हैं. जो मेल जो है वो मेल सेक्स सेल्स मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है. तो मेल गैमेट इज कॉल्ड द स्पर्म. मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं. सो मेल प्रोड्यूसेस द स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम ओवम या फिर एग कहते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स इज दिस, जब गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो दे फर्टिलाइज विद ईच अदर. जो स्पर्म और ओवम है उनका फर्टिलाइजेशन होता है टू प्रोड्यूस द जाइगोट. जाइगोट प्रोड्यूस होता है एंड इवेंचुअली दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू अ बेबी. This whole process we will going to study in detail in later in the chapter. Today just introduction I am giving. Okay, so now why sexual reproduction is preferred over asexual reproduction? Sexual reproduction का क्या advantage है? First see here on the blackboard, what is sexual reproduction? Two individuals, one male and one female, needed to produce the new generation. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. Now coming to why sexual reproduction is needed. क्यों sexual reproduction की ज़रूरत है? First is diversity of characters in offsprings. Now what do you mean by diversity of character in offsprings? Diversity of characters means, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो पेरेंट चाहिए, मेल और फीमेल. तो दोनों के ही कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं. पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, क्योंकि सिंगल पेरेंट था तो सिर्फ उसी के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे थे. पर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स हैं, तो दोनों के ही कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं. कुछ कैरेक्टर्स मदर में से आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स फादर में से आते हैं. तो मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डाइवर्सिटी है कैरेक्टर्स में, मीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसेस वेरिएशंस लीडिंग टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. अब इन्हीं जो कैरेक्टर्स हैं जो मेल और फीमेल में से आ रहे हैं, ये वेरिएशन कॉज करते हैं. वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशन हुआ तो वेरिएशन होते होते न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाती है. ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के लिए, या हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए वेरिएशन ज़रूरी है, ताकि जो ये रिप्रोडक्शन जो वेरिएशन कॉज कर रहे हैं वो होता रहे और न्यू स्पीशीज डेवलप होती रहे इवेंचुअली, विच लीड्स टू दी
इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वेरिएशन। अब ये वेरिएशन है क्या और कैसे वेरिएशन होता है? नाउ यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास अबाउट द डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीएनए इज the genetic material, or we can say it is the hereditary material that is transferred from the parents to the offsprings. डीएनए क्या करता है? मदर और फादर में से जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए। और डीएनए कहाँ सिचुएटेड होता है? डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल होता है। हर एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उस क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट है। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। नाउ हाउ वेरिएशन अकर्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे आते हैं? डीएनए ट्रांसफर होता है। अब डीएनए कैसे ट्रांसफर हो रहा है? मदर का डीएनए और फादर का डीएनए, दोनों का डीएनए कंबाइन होता है और फिर ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आता है। अब ये कंबाइन हो रहा है तो जो मदर का डीएनए है वो ओरिजिनल डीएनए और फादर का ओरिजिनल डीएनए तो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं आएगा। तो व्हाट हैपेंस इज डीएनए कॉपिंग अकर्स। एक टर्म आती है यहाँ पर डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग एज द नेम सजेस्ट द कॉपी ऑफ द डीएनए मीन्स जो एक डीएनए प्रेजेंट है उसकी कॉपी प्रोड्यूस होती है, 2 कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं इंडिविजुअल्स में। सी हियर डीएनए कॉपिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोड्यूसिंग 2 identical copies of DNA from one original DNA molecule। जो मदर और फादर का डीएनए है वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होने से पहले कॉपीज प्रोड्यूस करता है। मींस मदर के डीएनए की 2 कॉपीज प्रोड्यूस हो रही है, आइडेंटिकल कॉपी। जो मदर का डीएनए है सेम उसकी एग्जैक्ट जैसे आप फोटोकॉपी कराते हैं सेम वैसी डीएनए की कॉपी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसी फादर के भी डीएनए की 2 कॉपीज प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है? सी आई हैव ड्रॉन हियर अ डायग्राम, a rough diagram. This is the DNA, parent DNA है। parent DNA means original जो DNA is a double helical structure। double helical structure means 2 helix या 2 strands present है, 2 strands of DNA are present and they are coiled। ये आपस में एक दूसरे से coiled होते हैं DNA को, इसलिए हम double helical structure बोलते हैं। Now what happens, ये जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं ये सबसे पहले अनवाइंड होते हैं। अनवाइंड मतलब ये दोनों स्ट्रैंड्स थे, ये अनवाइंड हो गए, एक स्ट्रैंड यहाँ पे और एक स्ट्रैंड यहाँ पे, दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है यहाँ पे एक दूसरे स्ट्रैंड आके कॉइल होता है ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड में। सेम है। तो इसी तरीके से ये जो ओरिजिनल डीएनए था, जो मदर या फादर का जो भी डीएनए था, वो ओरिजिनल डीएनए 2 कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो कॉपीज हैं फिर ये ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे ट्रांसफर हो रही है? फ्रॉम कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं मदर के और फादर के ऑफस्प्रिंग्स में और उन्हीं क्रोमोसोम्स के साथ ये डीएनए की कॉपी आती है। एंड दैट्स व्हाई वी गेट द कैरेक्टर्स और वी मोर प्रिसाइसली आई कैन से दैट वी इनहेरिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। आपने सुना होगा जब भी किसी न्यू बेबी का बर्थ होता है तो उसको देख के जनरली लोग कहते हैं कि इसके बालों का कलर पापा पे गया है, या इसकी जो नाक है, इसकी जो आईज हैं, लिप्स की शेप है, ये किसी पे गई, दादी पे, नानी पे, मम्मी पे गई है। तो वो कैसे जाती है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस डीएनए ओनली, क्योंकि उनका डीएनए जो है एग्जैक्ट वो आता है। अब जो वेरिएशंस, यहाँ मैंने वेरिएशंस की बात की थी, वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? जो ये डीएनए की कॉपी ऑफस्प्रिंग्स में आती है फ्रॉम मदर और फादर, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है डीएनए कॉपीइंग का।
इसमें ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता। मीन्स एग्जैक्ट कॉपी कभी भी नहीं आती है ऑफस्प्रिंग्स में। मदर और फादर के डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं आती है, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाती है। अब एरर कैसे होती है? एरर ऐसे होती है, इनमें क्या होते हैं, डीएनए में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में पेयर करते हैं, पेयर होते हैं, जिनको दैट यू विल स्टडी इन लेटर क्लासेस। जनरली मैं आपको बता रही हूँ जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एडेनिन होता है, बेस पेयर्स कहते हैं हम इसे, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। शॉर्ट फॉर्म होती है इनकी ए, टी, जी एंड सी। अब ये इसमें पेयर होते हैं। एडेनिन हमेशा पेयर होता है टी से, ग्वानिन हमेशा पेयर होता है सी से। ए टी, टी ए, सी जी, ये हमेशा इस तरीके से पेयर होते हैं। मीन्स एडेनिन हमेशा पेयर होगा टी से, ये बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए टी के साथ ए ना आके सी आ गया, तो ये एरर हो गई। तो ये जो डीएनए है ये ओरिजिनल पेरेंट के डीएनए से डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं डीएनए कॉपिंग के टाइम पे। तो ऑफस्प्रिंग्स में जो डीएनए आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर पेरेंट का डीएनए नहीं आ रहा। ऑलवेज देयर आर सम एरर्स which occur during the copying by producing the copying of the DNA। तो इसकी वजह से वेरिएशन, अब वेरिएशन प्रोड्यूस हो गया, ऑब्वियसली वेरिएशन आ गया ऑफस्प्रिंग में। ऐसे ही क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये वेरिएशन जो है बढ़ता जाता है और इवेंचुअली आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों के बाद ये ओरिजिनल जो पेरेंट था जो ट्रांसफर होता हुआ आता था, मीन्स जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे जो डीएनए ट्रांसफर होता आ रहा है पूरा, वो इतना ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है उसमें कि इट इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन। बट यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या एडवांटेज है, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन कॉज होते हैं और जो न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन में, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग इज क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब मैंने आपको बोला कि मदर का डीएनए और फादर का डीएनए आ रहा है ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो डीएनए की जो क्वांटिटी है वो फिक्स होती है। डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23 पेयर्स, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 23 पेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जब आपका मदर और फादर ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग, तो इसमें जब मदर का भी डीएनए आ रहा है और फादर का भी डीएनए आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए की क्वांटिटी तो डबल हो जानी चाहिए, है ना। मदर का डीएनए भी आ गया, फादर का भी डीएनए आ गया, तो डीएनए की कॉपी डबल हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पे कॉपी डबल हो गई, तो अब ये जब फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो इसमें क्या होगा, ये फिर से इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। मीन्स 2 था, 2 का डबल हो गया, 2 मदर में से आए, 2 फादर में से आए, तो ऑफस्प्रिंग में 4 हो गए। अब ये दोबारा से जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो 4, फिर से यहाँ से 4, तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएंगे उसमें जो नंबर ऑफ डीएनए है 8। तो ऐसे तो डीएनए क्या होगा, इतना ज्यादा डीएनए हो जाएगा कि वो एक सेल में आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है ऐसा, देयर इज अ रीजन फॉर इट।
So the question arises, why the amount of DNA does not get double? जब ऑफस्प्रिंग्स में डीएनए आ रहा है मदर और फादर में से, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल कैसे रहती है मदर और फादर के, डबल क्यों नहीं हो जाती क्वांटिटी? क्योंकि मदर और फादर दोनों का डीएनए आ रहा है, तो क्वांटिटी डीएनए की डबल हो जानी चाहिए. बट एक्चुअली दिस डजंट हैपन. व्हाई दिस डजंट हैपन? क्योंकि रिप्रोडक्शन में कौन से सेल्स पार्ट लेते हैं? सेक्स सेल्स पार्ट लेते हैं, और वी कैन से रिप्रोडक्टिव सेल्स पार्ट लेते हैं. और रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में बिफोर रिप्रोडक्शन मियोसिस होता है. मियोसिस में क्या होता है? आपके जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं. मींस जो सेक्स सेल्स हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें. जैसे अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं. तो मदर जब ये रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो मदर के जो 46 क्रोमोसोम्स हैं और फादर में ओरिजिनली 46 क्रोमोसोम्स हैं. पर जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, सेक्स सेल प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा? उनके क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं ड्यू टू दी सेल डिवीजन, मियोसिस. मियोसिस में की वजह से उसके जो सेल है वो हाफ हो जाते हैं. तो जो सेक्स सेल्स हैं, हम कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उसमें पहले से ही नंबर हाफ हो जाते हैं. तो मींस जो मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज स्पर्म. स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ऐसी जो फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस कर रही है जो कि ओवम होता है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे. और जब ये फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा जब स्पर्म और ओवम का, तो 23 और 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे. तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया. 46 ही मदर में थे, 46 ही फादर में थे, तो इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं, डबल नहीं होते. फिर से बता रही हूँ ऐसा क्यों होता है, डीएनए डबल क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पहले से ही हाफ हो जाते हैं. सी हियर, reproductive cells, male and female gametes, contains only half the number of chromosomes. Means 46 chromosomes present है humans में, तो reproductive cells में, sex cells में, sperm और ovum में 23 chromosomes ही present होते हैं. So when male and female gametes merge, मेल और फीमेल गैमेट जब मर्ज होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, द नंबर बिकम्स नॉर्मल फॉर एन इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल के लिए जो क्रोमोसोम का नंबर है वो नॉर्मल हो जाता है, 46 हो जाता है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. What is the concept of DNA copying? Why DNA copying occurs? क्यों होता है DNA copying? और क्यों जो DNA है जब वो ऑफस्प्रिंग में आता है उसका नंबर डबल नहीं होता? DNA जो क्रोमोसोम्स है वो डबल क्यों नहीं हो जाते? So this is all for today's video. If you haven't got the concept, please do watch the video again, so that you will clear with the concepts. Read the chapter, read the refreshers, search the internet, watch the video again, and I hope this concept will be clear to you. So thank you and have a very nice day.